has internal SPR structure atom. चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर like to begin with, they have given the properties of subatomic particle, that is particles contained inside an atom. They have given some information about them. The information is name of the particle, subatomic particle, electron. Symbol for it is E minus, and the absolute charge contained on the electron is minus 1.6022 into 10 to the power minus 19, which is formally taken as 1.6 into 10 to the power minus 19 for all the calculative purposes. The relative charge is -1. Symbol for charge is -e. Mass per kg. This is called specific mass. Specific mass. ठीक है. Specific mass is 9.1 into 10 to the power minus. Sorry, it's not a specific mass. This is mass in kgs. ऐसे लिखा है इन्होंने ना. It's mass in kg. So mass of an electron in kg is 9.10938 into 10 to the power minus 31. For all practical purposes, we take it 9.1 into 10 to the power minus 31. Mass in AMU or unified mass unit is 0.00054 or 55. Or AMU approximate mass in U, that is unified mass, it is taken to be 0 because it is very much close to 0 even in AMU. Proton's mass, sorry, for proton, symbol is P, absolute charge 1.6 into 10 to the power minus 19 plus 1 plus E, 1.6726 into 10 to the power minus 27, 1.00727 or 1U. In AMU, relative mass is 1U. Relative mass in U, actual mass is, relative mass in decimals is 1.00727. इसको भी रफ एस्टिमेशन में हम 1U लेते हैं और न्यूट्रॉन के भी मास को 1U लेते हैं, बट इसके और इसके मास में देयर इज डिफरेंस. ठीक है. ये यहाँ पे एटॉमिक मास वगैरह जब देखते हैं तब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं क्रिएट करता है, बट व्हेन वी गो इनटू न्यूक्लियर केमिस्ट्री इट डज हैव सम ये. या सिमिलरली न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, देन इट विल हैव सम वेट. बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली मास एनर्जी कन्वर्सन, बाइंडिंग एनर्जी के नाम से नहीं पढ़ना था बस, बट मास एनर्जी कन्वर्सन आईसीएससी सिलेबस में भी है और आईजीसीएससी सिलेबस में भी है. मास एनर्जी कन्वर्सन E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर MC स्क्वायर. ये इक्वेशन था ना मास का कन्वर्शन. सो बेसिकली जब भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एटम का कंस्टिट्यूशन होता है, स्पेशली न्यूक्लियस का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, एक प्रोटॉन का मास इतना है और एक न्यूट्रॉन का मास इतना है. ठीक है. तो मान लो 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन रहा, तो मास कितना होना चाहिए? दिस इंटू 20 प्लस दिस इंटू 20. ठीक है. बट एक्चुअल मास उस न्यूक्लियस का होगा दैट विल बी स्लाइटली लेस देन दिस मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई 20 का जो रिजल्टेंट होएगा उससे थोड़ा सा कम रहेगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब जो थोड़ा सा कम होगा, सो बना वो इन चीजों से है. रहना चाहिए था कितना, एक्सपेक्टेड मास कितना होना चाहिए था? दिस मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई 20. बट एक्चुअल मास क्या है? थोड़ा कम है. तो देयर इज सम मास विच इज मिसिंग. अब वो मिसिंग मास जो होता है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, या वही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के न्यूक्लियस को बाइंड करने के या न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है. These two are called nucleons. Nucleons. Nucleons का मतलब constituents of nucleus.
constituents नोट करते जाओ ऑफ न्यूक्लियस जो नहीं जानते हो इंफॉर्मेशन. इज दैट ओके? वेरी गुड. Discovery of electron in year 1897, J.J. Thomson investigated the cathode rays and found that cathode rays are a stream of negatively charged particles he investigated cathode rays, okay, and found that cathode rays are a stream of very small negatively charged particles. Cathode rays are a stream of very small negatively charged particles, which are 1837 times lighter than a hydrogen atom. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास जो यहां पर दिया हुआ है 0.00054. This is nothing but, this number is nothing but 1/1837 U. Is that okay? प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम का मास जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1 U के बराबर होता है, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स यूनिफाइड मास. ओके. नेक्स्ट थिंग इज and are present in all atoms. Not only that, these particles are exactly same in all the atoms. So cathode rays from any atom or any element taken in cathode rays tube experiment will have same properties. Cathode rays coming from atoms of any element will have same properties. Is that okay? That means cathode rays are independent of atoms or elements taken or gases taken in the cathode rays tube. Can we write this? Properties of cathode rays are independent of gases taken in cathode rays tube experiment. अच्छा, ये वाला पार्ट पहले था, मैं मिस कर गया. Subatomic particles. Dalton's atomic theory was able to explain the law of chemical combination successfully. However, it failed to explain some properties of matter. For example, it could not explain why substance like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, generate electricity. Discovery of subatomic particle in late 19th and early 20th century set a blow to Dalton's atomic model of hard sphere. Three important subatomic particles, namely the proton, electron, and neutron, which are concerned to chemistry, were discovered. Proton and neutron are present in atomic nucleus together and are called nucleons. Electrons are present in the extranuclear region or part of the atom. The properties of electron, proton, neutrons are summarized in the below table. Okay. Next thing was discovery of proton. Discovery of proton was made through alpha rays scattering experiment on gold foil, or this is also known as gold foil experiment. In year 1911, Ernest Rutherford found in the experiment of scattering of alpha particle by thin gold foil that a few alpha particle bounce back. From this, he inferred the presence of massive and positively charged nucleus inside atom, bouncing back of few alpha particle. A few alpha particle bounce back here out of around 20,000. एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर रहा था. ठीक है. Based on this, he inferred the presence of massive positively charged nucleus at the center of atom. And he also
inferred from this that the rest of the atom is basically an empty or hollow entity. Following the discovery of nucleus in an atom, Rutherford found that fast-moving ultra particles transmuted nitrogen into oxygen with simultaneous liberation of hydrogen. So 14N7 plus 4 alpha 2 alpha, अच्छा alpha particle होता क्या है? Alpha particle is doubly charged helium nucleus. Alpha particle means हीलियम 2+, दोनों इलेक्ट्रॉन उसके निकाल दिए गए। उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का क्या होगा हिसाब किताब? उसका मास 4 यूनिट होगा और चार्ज 2 यूनिट होगा। ठीक है, ऊपर में मास होता है, नीचे में चार्ज होता है। और ये इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो 14 + 4 18 है, यहाँ पर 17 + 1 18 है। ऊपर वाले का सम बराबर होगा और नीचे वाले का सम LHS और RHS में सेम रहेगा। 7 + 2 9, 8 + 1 9। ये further so that other elements could also be transmuted but hydrogen was always emitted। ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन इससे एक प्रोसेस आता है जो हमको पता होना चाहिए। ट्रांसम्यूटेशन मीन्स bombarding of a nucleus with alpha particle in order to transform it into a heavier nucleus। ठीक है, this process of conversion of a simpler nucleus to more complex nucleus is called transmutation। Can we note it down? अनस्टेबल होगा हर बार ऐसा नहीं है, इट मे लीड टू फर्दर स्टेबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि स्टेबल नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं, एटलीस्ट मेटा स्टेबल नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लाइटर न्यूक्लियस is bombarded with alpha particle to convert it into heavier nucleus। Converting lighter nucleus to heavy nucleus। Noted, on the basis of Rutherford proposed that hydrogen nucleus must be contained inside nucleus of all the elements. Hence, hydrogen atom was renamed as, hydrogen nucleus was renamed as proton। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसमें बेसिकली यही था कि बहुत सारे पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, पिन होल से जा रहे हैं, ये स्कैटर कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ग्लो क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे by deflecting at different angle after passing through this gold foil। ये पीला वाला गोल्ड फॉयल है। ठीक है, अब इसके बाद मुद्दे की चीज ये है कि इस पूरे में से बाकी सारे स्कैटर हो जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स अनडिविएटेड पास कर रहे थे, बस एक पार्टिकल आउट ऑफ एवरी 20,000 वाज retracing its path। retracing its path मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री पर बाउंस बैक कर रहा था। ठीक है, इसके बेसिस पर इन्होंने ये बोला कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जनरली साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द रेंज ऑफ 10 टू द पावर, सो इन्होंने बेसिकली वो रेशियो बस दिया था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -5। This ratio is approximately 10 to the power -5। Is that okay? बाद में हमको पता चला कि रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 meters, that is 1 angstrom, whereas radius of nucleus is around 10 to the power -15 meter, that is 1 Fermi FM। ठीक है,
और फिर इनका जो स्टेटमेंट था कि रेशियो इनका क्या होना चाहिए 10⁻⁻⁵, दैट वाज प्रूवन ट्रू। अच्छा, इसमें भी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लगभग इन्होंने ही अपने ही इसी एक्सपेरिमेंट से निकाला था, फिजिक्स में वी विल टॉक अबाउट दैट। FM is फर्मी मीटर, फर्मी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद इट वाज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, existence of an electrically neutral and massive particle in the nucleus was predicted by Ernest Rutherford in 1920 to account for disparity in atomic number and atomic mass of an element. So there he found that there is disparity in between the mass of the atom and the number of protons contained in the nucleus. Whatever he was predicting from on the basis of this experiment, थोड़ी सी उसमें इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस वगैरह वो कर रहे थे, उसके बेसिस पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का काउंट वो निकाल रहे थे और उसका मास भी उनको पता चल रहा था। सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट से मास बाई चार्ज रेशियो से करके वो निकाल रहे थे। तो उसमें द नंबर काउंट ऑफ प्रोटॉन्स को उनके मास से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस ही वाज गेटिंग फ्रॉम his other set of experiments were not in conjonance. Conjonance matlab they were not similar. There was a huge gap. Basically, mass of the protons का जब वो count कर रहे थे, counting के हिसाब से mass of protons calculate कर रहे थे, जैसे 20 प्रोटॉन है तो 20 प्रोटॉन का जितना मास है और न्यूक्लियस का जो मास है उन दोनों में अप्रोक्सीमेटली 50% रहता था। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन्स जो है, सारे प्रोटॉन्स का मास was around 50% of the mass of the nucleus। ठीक है, तो इतना ह्यूज गैप नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने बोला कि कुछ तो और इनविजिबल पार्टिकल है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबली वो चार्ज नहीं है। ठीक है, तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि और है जिनको डिस्कवर किया जाना बाकी है। फाइनली इन 1932 जेम्स चैडविक measured the velocity of proton knocked out from paraffin by an unidentified radiation from beryllium. From that, he determined the mass of particle of unidentified neutral radiation, which came out to be almost the same as that of a proton. He named this particle as neutron, which was predicted by Rutherford earlier. पोलोनियम सोर्स अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पर गया, बेरिलियम से पैराफिन पर लिया और प्रोटॉन्स निकले, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को काउंट किया, न्यूट्रॉन्स जो थे इनका बेसिकली उसको आइडिया लगा। ठीक है, एटॉमिक अल्टीमेट चीज इसमें ध्यान हमको ये रखनी है कि चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जेम्स चैडविक। ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। हाँ हाँ, अगर याद है तो मेंशन कर दो, नहीं भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। चैडविक का नाम याद रहना चाहिए। हाँ, अबे अब तुम्हारा भी नाम सुनेगा कोई रसियन तो बोलेगा कि क्या नाम रखा। ठीक है, या मेरा भी नाम सुनेगा तो बोलेगा कि कैसा नाम रखा है बेवकूफ होते हैं। तो हर किसी का कल्चर है अपना, उसके हिसाब से नाम रखता है, उसके लिए वही नाम सिंपल है। ठीक है, हमारे लिए हम लोग का नाम सिंपल है, हमें उनका नाम ऑकवर्ड लगता है। Nevertheless, the number of protons in the nucleus is chemical identity of element. This number is called atomic number. Number of protons क्या होता है? Atomic number होता है। Number of protons in the nucleus is called atomic number of the element। ठीक है, एंड न्यूट्रल एटम अगर रहता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? इक्वल रहता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एटॉमिक नंबर बोल लेते हैं। बट जस्ट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम्स, अगर आयनाइज हो गया वो एटम, आयन बन गया, उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे सोडियम प्लस है तो सोडियम प्लस में 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
अब उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा सोडियम प्लस का? इट इज स्टिल गोइंग टू बी 11, इट विल नॉट बिकम 10. इज दैट ओके? उस पर चार्ज +1 आएगा, बट उसका एटॉमिक नंबर अभी भी 11 ही रहेगा. ठीक है. ओके. क्या? प्रोटॉन 12 नहीं, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाता है, प्रोटॉन 11 ही रहता है. प्रोटॉन का काउंट किसी भी आयनिक स्पीसीज में विल रिमेन सेम एज द नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम. ठीक है. हाँ, जो भी होता है वो निगेटिव चार्ज के साथ होता है. प्रोटॉन्स का नंबर अल्टर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज ट्रांसम्यूटेशन में या न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है, डिक्रीज या इंक्रीज दोनों. न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐड भी कर सकते हैं उसमें और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और रेडियो एक्टिव डीके भी होता है. ठीक है, ये 3 प्रोसेसेस हैं जिनको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं. और ट्रांसम्यूटेशन भी है. तो 4 प्रोसेसेस हैं जिनको न्यूक्लियर रिएक्शन बोल सकते हैं. ठीक है. और इसमें ही सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस विल गेट अल्टर्ड. ठीक है. अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स का डिटैचमेंट अटैचमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेस. The positive charge on the nucleus is due to the protons present in it, that is plus Ze. Atom being electrically neutral, it contains the same number of extra nuclear electrons in it as its atomic number. Therefore, total Therefore, the total electronic charge on an atom is minus Ze. टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एटम पे चार्ज रहेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी -Ze. क्यों? क्योंकि उसको न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको काउंटर बैलेंस करना है. इन अ न्यूट्रल एटम द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. न्यूक्लियस के बाहर का रीजन जो होता है एटम के अंदर दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. देखो, कॉपी ओपन रखो और उसमें की चीजें जो बोल रहा हूँ वो कम से कम मेंशन कर लो. ठीक है, ताकि बाद में रिवाइज करके कम से कम एक बार फिर से पूछ पाओ. atomic number Z, number of proton is equal to number of electrons. This is true only in case of neutral atoms. ठीक है. As seen from table 4.1, mass of an electron is negligibly small compared to that of the nucleons. As a result, the mass of an atom can be considered to be concentrated in its nucleus. The approximate mass of one proton or one neutron is 1 U. Therefore, approximate atomic mass in Daltons is numerically equal to the number of protons and number of neutrons, that is number of nucleons in an atom. ठीक है. This number of proton plus number of neutron is also known as mass number. ठीक है. mass number और atomic mass में there is fundamental difference. mass number क्या होता है? It's the number count of proton and neutron. Is that okay? और atomic mass क्या होगा? That will be the sum total of mass of proton, neutron and electron. बट इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि बहुत निग्लिजिबल होता है उनके कंपैरिजन में, सो इट इज गोइंग टू बी मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है. अभी जैसे पिछले बार वाला एग्जांपल लिया था मैंने, ऊपर में चलते हैं थोड़ा सा. 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है. ठीक है. तो अगर 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है तो मास नंबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा. इज दैट ओके? 40 विल बी द मास नंबर. ठीक है. एटॉमिक मास क्या होगा? atomic mass will be equal to 20 into 1.00727 plus 20 into 1.00846 U.
ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये नंबर हो जाएगा 20.145, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 20.1692, दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 2 6 9 5 14 के 4, 1 6 4 10 21 11, एक 1 1 2 1 3 और 20 20 40, कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 40.3 U। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? तो इसका मास क्या लेंगे हम? 40.3, और मास नंबर क्या हो जाएगा? 40। इज दैट ओके? मैंने ये भी बोला था बीच में कि ये जो है ये थ्योरेटिकल मास है, एक्चुअल मास इस न्यूक्लियस का क्या रहेगा या इस एटम का क्या रहेगा? दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेस देन दिस, ठीक है। अब स्लाइटली लेस देन दिस में एग्जैक्टली क्या रहेगा वो तो मेजर करके ही पता चलेगा। अब होता क्या है, इस नंबर से कम होने के चक्कर में लगभग ये इस नंबर के बराबर पहुंच जाता है जब हम लाइटर एटम्स की बात कर रहे हो, ठीक है। बट वहीं जब हेवियर एटम्स में जाएंगे, 100 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिविएट करने लगे, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? होगा ना? ये बड़ा मल्टीप्लायर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, दिस नंबर एंड दिस नंबर आर गोइंग टू डिविएट मोर, और इसमें थोड़ा डिक्रीज भी होएगा तभी इस नंबर से ये बड़ा हो जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, एक कैलकुलेशन हम छोटा सा कर लेते हैं 235 यूरेनियम के। तो 235 यूरेनियम में वी हैव, और इस वाले पेन से 92 यूरेनियम 235 होता है, 92 प्रोटॉन्स है, तो 92 इंटू 1.00727 हो जाएगा, प्लस 235 minus 92 will be 143, 143 into 1.00846 होता है। Is that okay? Think 846 ही नंबर था ना, 867 थोड़ा ज्यादा ही, सॉरी मुझे थोड़ा कम याद। तो ये हो गया 867। अब 867 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आई एम गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेटली, पहले वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा 92 इंटू 1.00727 इज 92.669, ठीक है। और दूसरे वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा 143 इंटू 1.00867 इज 144.2398 है, तो 240 इसको हम ले सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 144.240, हाँ 2369 है, तो नहीं 2396 है ना, 98 था, 236 नहीं, मुझे तो 1.00867 इंटू 143 करेंगे तो 2398 आ रहा है। तुमने 67 किया था या 46 किया था? अच्छा, पूरा नंबर डाल रहे हो एक साथ में? अच्छा अच्छा, वो तो अभी मैंने किया नहीं ना। 240 प्लस 92.669, हाँ 236.909, 236.909 आ गया, यानी 91 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, 235 है। अब 235 से मतलब ये वाला थोड़ा कम भी होगा, तभी 235 के रेंज में रहेगा या इससे थोड़ा बड़ा रहेगा? इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? यूरेनियम 235 का एक्चुअल मास जो होता है वो हम एक बार देख लेते हैं।
U-235 mass. गुड थिंग इज ये 235 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। दिस नंबर इज 235.044 यू, ठीक है। तो यहाँ से ये थ्योरेटिकल मास हुआ, यहाँ से ये यहाँ पे कम होकर के आया, बट इट इज स्टिल स्लाइटली हायर देन 235। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? थोड़ा सा ज्यादा है 235 से। तो मास नंबर से अब जैसे बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे, मास नंबर से डिविएशन चालू हो जाएगा। इज दैट ओके? मास नंबर and atomic mass are going to be different now altogether, and we are talking about actual mass number and actual ये atomic mass, not theoretical atomic mass. Theoretical atomic mass से तो वो डेफिनेटली बहुत छोटा रहेगा, एक्चुअल एटॉमिक मास से भी वो छोटा रहता है मास, ठीक है। वेरी गुड। आई होप मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा था आप लोग के समझ में आया। ओके। The number of neutrons in the nucleus is designated by the symbol N, and the total number of proton and neutron in the nucleons in an atom is called atomic mass number, that is A. Mass number A is equal to proton number Z plus neutron number N. A is equal to Z plus N, or N is equal to E minus Z. The composition of an atom is represented by the symbol X with atomic number A as superscript on the left and mass number A as superscript and atomic number Z as subscript on the left. ये दोनों लेफ्ट में होंगे ऐसा कुछ होता नहीं है, एक लेफ्ट में एक राइट में, या दोनों राइट में भी हो सकते हैं, कोई भी लेफ्ट या राइट कहीं पर भी होगा। हाँ, बस ये होता है कि जो सुपर स्क्रिप्ट में रहेगा, ऊपर में रहेगा, लेफ्ट हो या राइट हो, दैट इज गोइंग टू बी द मास नंबर, और जो नीचे में रहेगा, लेफ्ट में रहे या राइट में रहे, इट इज गोइंग टू बी द एटॉमिक नंबर। इज दैट ओके? वैसे भी देख के समझ में आ जाएगा, जो छोटा नंबर रहेगा वो एटॉमिक नंबर रहेगा, और जो बड़ा नंबर रहेगा वो मास नंबर रहेगा, ठीक है। The atom or the nucleus having unique composition as specified by AZX is called nuclide. Single nucleus nuclide. Find out the number of proton, electron, and neutron in nuclide 40 AR 18. In case of nuclide, this Z is 40. Sorry, Z is 18. A is 40. तो N क्या हो जाएगा? 22. P क्या हो जाएगा? 18. ठीक है। Then we have three terms on the basis of like which of them is matching. A match कर रहा है, Z match कर रहा है दो atoms के बीच में, या N match कर रहा है. We have three terms called isotopes, isobars, and isotones. Isotopes are two atoms having same atomic number but different mass number. Isobars are two atoms having same A value, that is mass number, but different atomic number. Is that okay? Isotopes के एग्जाम्पल हो जाएंगे C12, C14, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, हाइड्रोजन that is protium H1, and deuterium and tritium. Deuterium is 2H1 and tritium is 3H1, ठीक है। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, H11, 2H1 and 3H1. 1H1 को बोलते हैं हम लोग प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, और ये होता है ट्रीटियम। ये रेडियो एक्टिव होता है,
ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर ऑल्सो नोन एज रेडियो आइसोटोप। नोट कर लीजिए। Some elements exist as single natural nuclide, for example, 19F9. However, many elements exist naturally as a mixture of two or more type of atoms or nuclides. These individual nuclides are called isotopes of that element. All isotopes and element have same number of protons but different number of neutrons in their nuclei, and therefore they have different mass number. As the proton number in the is the atomic number, all the isotopes of an element have same position in modern periodic table and exhibit similar chemical properties. They exhibit similar chemical properties. Same नहीं, similar. ठीक है, मतलब कंपाउंड्स को सेम तरह के बनाएंगे, रिएक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मास अलग अलग होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है। All the natural isotopes of an element coexist and have a definite natural abundance. Table 4.2 shows various features of three common isotopes of carbon. कार्बन के तीन isotopes C12, C13 and C14. सबके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर 12, 13, 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, 7, 8, abundance 98.9%, 1.1%, and this is less than 0.0017%. बहुत कम है, बट ये वाला रेडियो एक्टिव होता है, इट इज रेडियो आइसोटोप and it is used to determine the age of the fossil fuel. Is that okay? कार्बन डेटिंग प्रोसेस होती है, उसमें यूज है, उसमें इसको हम कंसिडर करते हैं। ओके, isobars, atoms of different elements having same mass number but different atomic number are called isobars. So these are going to be atoms having same mass number but different atomic number. Number of protons in the atoms are going to be different, but the sum of proton and neutron is going to be the same. For example, argon 40 and calcium 40. Or for example, nitrogen 14 and carbon 14. They have same mass number but different atomic number. 6, 7 है नाइट्रोजन और कार्बन के केस में, और आर्गन एंड कैल्शियम के केस में 18 एंड 20 एटॉमिक नंबर है, और दोनों का मास नंबर 40, 40. ठीक है। Isobars are different elements and therefore they are going to have different positions in periodic table, therefore different reactivity या different chemical reaction, chemical properties रहेंगे उनकी। ठीक है, they are just going to be same in terms of mass of atoms, as mass of the atom, mass number of the atom. Okay. Carbon 14, nitrogen 14 are isobars. यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लिया गया है। Two natural isotopes such as average atomic mass is a number, ठीक है, which is equal to relative abundance of a particular isotope multiplied by its atomic mass का summation. Average of the chemical abundance or abundance of a particular isotope
into its atomic mass. जैसे यहाँ पर दो आइसोटोप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, इनका रिलेटिव अबंडेंस 3:1 है। मतलब ये 3 एटम रहेगा और ये 1 एटम रहेगा, तो 4 एटम रहेंगे टोटल, चारों एटम का एवरेज। तो हर 3 एटम पे एक एटम 37 है, 35 के 3 एटम पे एक एटम 37। तो कोई भी बल्क अगर हम लेते हैं, उसमें 3 पोर्शन रहेगा हमारा 35 का और एक पोर्शन रहेगा 37 का। एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज विल सिंपली बी इक्वल टू 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1/4। दिस 3/4 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, इनटू देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास। और ये जो नंबर आएगा इसका रेशियो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। इज दैट ओके? 35 into 3 will be 105 plus 37, that will be 142. 142 by 4 is 35.5. Is that okay? Very good. From the relative abundance 3:1, it is understood that out of 4 chlorine atoms, 3 atoms have mass 35 and 1 has 37. Therefore, average atomic mass of chlorine 3 into 35 plus 1 into 37/4 is 35.5. ठीक है? Problem 4.3. 3 elements Q, R, T have mass number 40. Their atoms contain 22, 21, and 20 neutrons respectively. They have same mass number but different number of neutrons. Represent their atomic composition with appropriate symbol. तो मास नंबर 40 है सबका और इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले वाले केस में जिसका 22 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 40 माइनस 22 18, जिसमें 21 है उसका 19 और जिसमें 20 है उसमें 20 प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 18, 19 एंड 20। मास नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, 19, 20, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 21, 20, 22, 21 एंड 20 वो तो दिया ही हुआ है। तो इट इज गोइंग टू बी पी क्यू आर, क्यू आर एंड टी है, तो क्यू इज 40, 18, 40, 19 आर है एंड 40, 20 टी है। ये वाला कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम। ये वाला कौन सा है? आर्गन। और ये क्या होगा? पोटेशियम, ठीक है। आखिरी वन है आइसोटोन। आइसोटोन होता है एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, देखो सेम एटम, सेम एलिमेंट के एटम होंगे तो उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम ही रहेगा, प्रोटॉन भी सेम रहेगा, उनको आइसोटोन नहीं बोलेंगे। नंबर ऑफ सॉरी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब जेड डिफरेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, ठीक है। जेड डिफरेंट हो और a माइनस जेड की वैल्यू सेम होनी, जेड डिफरेंट होना पहला कंडीशन है एंड देन a माइनस जेड का सेम होना इज सेकेंड कंडीशन। इज दैट ओके? फॉर एग्जांपल कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8, ठीक है। ऑक्सीजन 16 में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 8। तो ऑक्सीजन 16 एंड कार्बन 14 आर आइसोटोन। इज दैट ओके? क्योंकि z उनमें डिफरेंट है और a माइनस जेड की वैल्यू सेम है। इज दैट ओके? यहाँ पर बोरॉन और कार्बन का एग्जांपल लिया है, 11 बोरॉन 5 एंड 12 कार्बन 6, दोनों में 6 न्यूट्रॉन्स है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज आइसोटोन। Drawbacks of Rutherford atomic model. Let us go back to the point of time when Rutherford put forth his nuclear model of atom. It is akin to miniature of solar system planetary model था ये. Nucleus playing the role of massive sun and electrons are lighter planets.
Electrons in this model could not be stationary as the electrostatic force of attraction exerted would pull them towards itself, and this would form a miniature version of Thomson's atomic model. However, the electrons revolving about the nucleus, as described by Rutherford, also pose a problem. ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी? बेसिकली प्रॉब्लम रदरफोर्ड के बाद अराइज हुई। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल रख दिया, उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल पुट फॉरवर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 4 लॉ थे, उनको कंबाइन किया था जो उनके पहले साइंटिस्ट ने निकाले थे। लेट 19th सेंचुरी में 4 अलग अलग लोगों ने, जिसमें से मैक्सवेल भी एक थे। मैक्सवेल ने सबसे आखिरी फोर्थ लॉ जो था वो दिया था, ठीक है। बट जैसे डाल्टन ने क्या किया था, सारे लोग पुराने लोगों ने जितना काम किया था, जैसे प्रोस्ट ने प्रोस्ट का काम कंबाइन किया, लेवोसियर का काम कंबाइन किया, और आखिरी में अपना भी एक लॉ जोड़ दिया, ठीक है। डाल्टन लॉ मल्टीपल कंपोजिशन वाला जो था, वो या मल्टीपल केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपोजिशन इन मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो था वो उसने अपना खुद का दिया था, बट पुराने लोगों का भी कंपाइल कर दिया था। दैट ही कॉल्ड एटॉमिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सिमिलरली मैक्सवेल ने पहले 3 लोगों ने काम किया हुआ था, लेंज ने, और एक लेंज का था, दूसरा लेंज लॉ था, चार, 1 2 3 4 लॉज को कंबाइन किया था। चौथा वाला मैक्सवेल का खुद का था। पहले 3 जो थे, हाँ, गॉस लॉ था, लेंज लॉ था, और एक एम्पियर्स लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ, और आखिरी लॉ जो था वो इस मैक्सवेल का खुद का था। इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। और उसमें इसका ये बोलना था कि अगर कहीं पर भी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब स्पेस के किसी रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉइंसाइड करती है या इंटरेक्ट करती है, तो इमीडिएटली उस रीजन से एनर्जी रिलीज होने लगती, ठीक है। वो रीजन कहीं पर भी हो स्पेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेट, टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक एंड टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली एक रीजन में इंटरेक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगे एंड उसके थ्रू एनर्जी रेडिएट होने लगेगी। इमीडिएटली एनर्जी रेडिएशन चालू हो जाएगा, या एनर्जी बेसिकली रेडिएशंस के फॉर्म में इमिट होने लगेगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, प्लैनेट्स के केस में क्या होता है, प्लैनेट्स आर अनचार्ज पार्टिकल, ठीक है, उन पर नेट चार्ज नहीं होता है। द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन देम इज बिकॉज ऑफ देयर मास, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या था, दे आर चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने की वजह से उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ वो इमिट करता रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो है वो यहाँ पर गोल गोल घूमते रहेंगे, ठीक है। अब गोल गोल घूमना तो ठीक है, गोल गोल जब ये घूम रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल है, तो जब ये चलेंगे तो अपने साथ करंट जनरेट करेंगे। जैसे ही चार्ज मूव करेगा, अ करंट विल गेट एसोसिएटेड, ठीक है। तो अगर ये सीधे चल रहे होते तो प्रॉब्लम नहीं होती। द मोमेंट दे स्टार्ट सर्कलिंग अबाउट, ठीक है, सर्कल करने लगते हैं, तो इनके साथ एक एक्सेलरेशन एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर सीधे सीधे चलता है तो सिंपल करंट इंट्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट करने लगता है तो इसमें टाइम चेंजिंग करंट आ जाएगा, यानी करंट जो होगा कांस्टेंट नहीं होगा, इट विल बी टाइम डिपेंडेंट करंट हो जाएगा,
आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे अगर कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता है तो सिर्फ एक कांस्टेंट करंट आएगा, बट एक्सिलरेट करने वाला अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो देयर विल बी टाइम चेंजिंग, क्योंकि एक्सिलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज कर रहा है मतलब, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक पर्टिकुलर करंट है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट, और जैसे ही स्पीड चेंज करने लगेगी, वेलोसिटी चेंज करने लगेगी, तो करंट भी चेंज करने लगेगा। इज दैट ओके? अब होता क्या है कि करंट अगर कहीं से भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मूविंग करंट क्रिएट सॉरी, करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो चेंजिंग करंट क्या क्रिएट करेगा? टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट ओके? तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट करंट क्रिएट करेगा। एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? टाइम चेंजिंग करंट क्रिएट करेगा। कांस्टेंट करंट जो है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। टाइम चेंजिंग करंट क्या करेगा? टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब हमारे पास आ गया टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक, डी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एटम के अंदर में ओवरलैप या इंटरसेक्ट कर रही हैं। इज दैट ओके? अब ये अगर इंटरसेक्ट कर रही है या ये दोनों इंटरफेयर कर रही हैं, तो देयर हैज टू बी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ, क्या होना है? रेडिएशंस निकलने हैं। ठीक है? अगर वो फिजिकल स्पेस में निकल रहा है तो एटम जो है वो फिजिकल स्पेस का ही एक पार्ट है, मिनिएचर पार्ट है। तो वहां पर वो लॉ ऑफ फिजिक्स क्यों नहीं अप्लाई होगा? देयर इज नो रीजन। वहां पर भी अप्लाई होगा। ठीक है? अब इस बात को लेकर के बोर बैठ गया कि यहाँ पर क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी अप्लाई होगा, और ये अगर अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, अराउंड 10⁻⁻⁵ सेकेंड्स में ऑर्बिट करता हुआ न्यूक्लियस में आकर के घुस जाए। ठीक है? ऐसे क्लोज्ड लूप में स्पाइरल करता हुआ इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस में बैठ जाएगा, और न्यूक्लियस में जैसे ही बैठेगा तो फिर हमारा मॉडल जो है वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल बन जाएगा, जहां पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज के सी में पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के सी में निगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। स्टैटिक मॉडल पे चला जाएगा। तो बेसिकली जो बेनिफिट्स रदरफोर्ड क्रिएट करना चाहता था वो बेसिकली इसके थ्रू, मूविंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करना चाहता, और वो चीज गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। बोर्स को इसका एक और डेवलपमेंट हुआ था इस बीच में, उसका एडवांटेज मिल गया। देयर वेयर नोबल गैसेज जो कि पहले डिस्कवर्ड नहीं थे, और 1920s के आसपास में एक आध दो नोबल गैसेस का हमको पता चल गया। ठीक है? हाइड्रो हीलियम और नियॉन का पता हमको उसी राउंड अबाउट टाइम फ्रेम में चला। अब हीलियम और नियॉन जो नोबल गैसेस हैं, दे आर मोनोएटॉमिक। उसके पहले जो भी गैस हमको पता थे वो डायटॉमिक। ठीक है? डायटॉमिक का मतलब वो बॉन्ड किए हुए हैं। तो बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल में हम ये एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि चूंकि वो अनस्टेबल है इलेक्ट्रॉन, इसलिए कंबाइन कर जाता है, दूसरे वाले एटम के साथ कंबाइन कर गया, और कॉम्बिनेशन में ही स्टेबली एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब जब जैसे ही हमको ये मिल गया, हीलियम और नियॉन मिल गया, तो ये सिंगल एटम है और ये स्टेबल है, किसी के साथ बिना रिएक्ट किए हुए इनफाइनाइट टाइम तक अकेले एग्जिस्ट कर सकते। उनकी एग्जिस्टेंस जो है रदरफोर्ड मॉडल के लिए इट्स गोइंग टू बी हजार्डस। ठीक है? मैक्सवेल बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक और टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेयर हुए, एनर्जी निकलेगी, रेडिएशन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाए। ठीक है?
और यहाँ पर हमको इन्फिनाइट टाइम तक एग्जिस्ट करने वाले इंडिपेंडेंट एटम मिल जाते हैं, जिसमें अब इंडिपेंडेंट मिल रहे हैं, इसका मतलब उनके इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट टाइम तक ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है, कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। तो ये काउंटर आर्गुमेंट पे बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड किया, ठीक है, और उसने अपना मॉडल दिया और हम अब उसने अपना जो मॉडल दिया उसमें क्या था, उसमें बेसिकली वो एक प्रोपोजिशन रखता है, एक अजम्पशन लेता है कि देयर आर सर्टेन स्पेस इनसाइड द एटम, सर्टेन पर्टिकुलर स्पेस इनसाइड द एटम। प्लम कोडिंग रदरफोर्ड का नहीं था, प्लम कोडिंग था थॉमसन का, वो गया उसके बारे में इसमें कुछ बातचीत नहीं करी गई है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं, और आजकल उसके बारे में डिस्कशन होता भी नहीं है पेपर्स वगैरह में जनरली, एक्सेप्ट कि कभी कभार जेई के मूड में आ जाता है तो कुछ बेसिक, ठीक है। हाँ, तो बोर ने ये बोला कि हर एटम में देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक रीजंस अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें मैक्सवेल्स लॉ जो होता है वो वर्क नहीं, दीज आर मैक्सवेल्स में फ्री रीजन। बाकी एटम के अंदर बाकी जो स्पेस है वहां पे मैक्सवेल्स लॉ काम करेगा, बट ये कुछ पर्टिकुलर जोन्स हैं, कांस्टेंट एनर्जी जोन्स, जिन पर मैक्सवेल्स लॉ का कोई काम नहीं रहता है। तो अब ऐसा अगर कुछ रीजन एग्जिस्ट करता है तो उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसने वो प्रॉपर्टी बताई कि कौन कौन सा रीजन है, वो रीजन कहाँ लाई करता है। उसके लिए उसने एक चीज बोला कि सर्कुलर ऑर्बिटल्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक चीज होती है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सुबह में पढ़ाया था, ठीक है, तुम नहीं थे कोई बात नहीं है, मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा है ना, लीनियर मोमेंटम इसको बोलते हैं, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एम वी इंटू आर, एम वी इंटू आर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है। लीनियर सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब कोई भी n which has integer value of h upon 2 pi, the MVR, जिसका भी MVR मतलब वो ऐसा रीजन होगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, वो वाले ऑर्बिट या वो वाला जो सर्कुलर पाथ होगा, वो जोन जो होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिव जोन, जहां पर मैक्सवेल्स लॉ काम नहीं करता, ठीक है। अब इसका बेसिकली ये तो वो क्या बात है कि किसी एक चीज को हमने काटा और एक बहुत ही फालतू सा आर्गुमेंट दे दिया, ठीक है, बट इसका फालतू सा आर्गुमेंट जो है ना वो फिर भी एक्सेप्ट हो जाता है, क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन ज्यादा इंटरेस्ट, ठीक है। ये मॉडल इसने प्रेजेंट किया 1911 में, रदरफोर्ड ने दिया, 22-23 के आसपास में इसने अपना मॉडल प्रेजेंट किया, और मैक्सवेल का जो आया था वो अराउंड 20 के आसपास, 18 के आसपास आया, ठीक है। अब दो और बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जो 1880 के आसपास में, 1880 से 1890 के बीच में कुछ महान काम किए थे, इनफैक्ट 1870 से 1890 के बीच, ठीक है। इन दो साइंटिस्ट का नाम था, एक साइंटिस्ट थे लाइमन, और दूसरे जो थे एक सेकेंड, लाइमन था, लाइमन था, और सीरीज और बाल्मर, स्पेशली बाल्मर, जिनके नाम पर बाल्मर सीरीज है, ठीक है। बाल्मर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस का कैलकुलेशन किया, विजिबल स्पेक्ट्रम में पढ़ने वाले स्पेक्ट्रल लाइंस का वेवलेंथ कैलकुलेट किया, ठीक है। अब बोर्स जो मॉडल लेकर के आया अपना, ये
फालतू सी बकवास वगैरह प्रपोज करने के बाद बहुत सारे लंबे चौड़े कैलकुलेशन उसमें होंगे जो कि आपको भी करने पड़ेंगे। वो सारे कैलकुलेशन के बाद हाँ HSC में अभी कराऊंगा, इसी में रहेगा। तो वो सारे फिजिकल कैलकुलेशंस करने के बाद जो फाइनल एनर्जी वैल्यू इस थ्योरेटिकल मॉडल से वो कैलकुलेट करके आता है, ठीक है, चेंज इन एनर्जी while going from one orbital to other, sorry, one orbit to other orbit, वो एनर्जी वैल्यू लकीली बाल्मर का जो कैलकुलेटेड वैल्यू था, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू, उसके साथ इनसिंक था। ठीक है, तो इट्स लाइक कि उसने कुछ तो किया आलतू फालतू काम, ठीक है, और वो वैल्यूज एग्जैक्टली कोइंसाइड करी बाल्मर्स के एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। अब ये अद्भुत काम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट देन इन जनरल नोबडी हैज दैट कैपेसिटी कि एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस को बैक करने वाला अगर कोई थ्योरेटिकल मॉडल है तो उसको डायरेक्टली आप डिस्कार्ड कर, when nobody can do it without knowing ki what is the loophole, right? So this was the story of Bohr's model and the circumstances in which it was approved or accepted. ठीक है, अभी तक आप जो लोग मॉडल पढ़ते आए हो वो सारे बोर्स मॉडल, ठीक है, और आगे भी हम बोर्स मॉडल की एक्सेप्टेबिलिटी कहां से आती है, उसका सबसे मेन रीजन जो होता है, it is an intermix of classical with quantum. It is an intermix of classical with quantum. Why I am saying classical with quantum? Classical में हमारे electric field and magnetic field and calculation of potential and force, ये सारी चीजें आती, ठीक है। क्वांटम में हमारा आता है कि एवरीथिंग इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग बेसिक, ठीक है, जैसे उसने इसका क्वांटाइजेशन किया, एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइजेशन किया, तो ये दो चीजों का इंटरमिक्स, दो अलग अलग साइंसेस का इंटरमिक्स, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दिस ये स्ट्रेस करता है पार्टिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पार्टिकल्स को विजुअलाइज करना हमारा ये बेसिक ये है कि जब तक हम एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचते हैं ना, यानी अब जब एक बार आप लोगों को वेव की पिक्चर्स क्लियर कराई जाएगी 11th में आकर के एंड 12th में, उसके पहले तक आप पूरी दुनिया को पार्टिकल के फॉर्म में ही देखते हैं। वो हमारे लिए, अब चलिए आप तो साइंस के स्टूडेंट बन गए, ठीक है, तो फिर भी आपको पार्टिकल देखना या रिलेट करना पार्टिकल्स के साथ, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम हर चीज को पार्टिकल के फॉर्म में देखते हैं, तो हमारे लिए पार्टिकल्स के साथ रिलेट करना बहुत इजी होता है, ठीक है। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, उसको अगर हम वेव नेचर समझाने जाएंगे तो उसकी बैंड बज जाएगी, ठीक है। साइंस ग्रेजुएट्स की भी बैंड बज जाती है, वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो कॉमन पीपल का तो फिर छोड़ ही दो, दे कांट डू इट। ऑन कॉन्ट्ररी बोर्स मॉडल जो है पार्टिकल मॉडल होने की वजह से बहुत ही इजीली बच्चों को या जनरल पब्लिक को समझाया जा सकता है, ठीक है। दैट्स वेयर बोर्स मॉडल फाइंड्स इट एप्लीकेबिलिटी, और काफी सारे फीचर्स को एक्चुअली पार्टिकल मॉडल इन टर्म्स ऑफ बोर्स मॉडल हम रफली एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रिसाइजली नहीं कर सकते हैं, तो प्रिसाइजली जनरल पीपल को करना भी नहीं है, प्रिसाइजली काम तो साइंटिस्ट का है, केमिस्ट का है, फिजिसिस्ट का है, जिनको कि उस पर रिसर्च करना है या उसको अप्लाई करना है, या टेक्नोलॉजिकल पीपल का है जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को कैलकुलेट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज करके चिप टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, ये उनका काम है ना। अब माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क कर रहे हैं इसमें जनरल जनता को क्या लेना है, उसको तो फोन के ऊपर बटन टीप करके अपना नंबर डायल करना है और ब्राउज करना है, उसको उससे मतलब है।
अब उसके अंदर प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है उसको उससे लेना देना क्या है। And that's how the technology and science works for general people. तो बहुत ज्यादा मतलब होगा तो ठीक है, उसको ब्रीफली ये बता दो कि कैसे काम करता है, दैट इज सफिशिएंट। अब वो ब्रीफली जब आप बताने जाते हो तो जितना सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में आप बताओगे उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी उनकी। जैसे ही आप साइंटिफिक कंसिडरेशंस में जाओगे, इट इज गोइंग टू बी पेनफुल फॉर देम टू अंडरस्टैंड, राइट। So Bohr's model is a model which can be very easily understood and can be explained to others. ठीक है, that is where it finds maximum acceptability and obviously बचपन में चूंकि सिंपल है तो इसी फॉर्म में सब लोगों को पढ़ा दिया जाता है। फिर जैसे ही हम हायर स्टैंडर्ड्स में आते हैं, इट इज मतलब फिर हमको माइन्यूट डिटेल्स में जाना पड़ता है, केमिकल बॉन्डिंग देखनी पड़ती है इसी थियरी के बेसिस पर। और जब हम केमिकल बॉन्डिंग देखने लगते हैं या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में आते हैं तो दिस थियरी फेल्स ड्रास्टिकली, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर ड्रॉबैक फॉर दिस थियरी बोर्स मॉडल। ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है, ठीक है। दैट मीन सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए सही है, या हीलियम प्लस एटम के लिए सही होगा, या लिथियम 2+ जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आएगा ये सिस्टम फ्लॉप कर जाएगा, ये थियरी फ्लॉप कर जाएगी, ठीक है। तो इसने फ्लॉ ढूंढा रदरफोर्ड मॉडल में यूजिंग मैक्सवेल्स थियरी। ये हमारा एक की पॉइंट रहेगा, यहाँ पे अभी हम लोग रुक जाएंगे and we'll continue from here in the next lecture, जिसमें ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल से मैं चालू करूंगा and I'll take it from, ठीक है। मतलब ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, क्या कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज सारे दे दिए। I'll be talking from here, taking things in this term जो भी लिखा हुआ है, and then I'll explain the details. Is that okay? Okay. Okay, bye bye, good night.